Hello and good morning students. In my previous video, I have taught you about the chapter 5, the fundamental unit of life in biology. So we have taken some important points, important topics. These were the definition of cell, discovery of cell, shape and size of cell, three parts of cell, types of cell, plant cell and animal cell. We have already covered these topics. For today, I am sending one more video where you can study more about the cell and different cell organelles. Okay, these are your notes, so you can learn all these things from these notes. So let's we start our today's topic. Next topic of this chapter is cell organelles. What are cell organelles? Living structures present in the cell cytoplasm are called cell organelles. Okay, so by the diagram you can learn easily. This is the diagram which I am making of cell. It is a structure of simple cell of animal. Small structures are you watching over here? These type of small structures are living. They are having different specific function and different specific structures. So these different structures and specific functions of these structures are known as cell organelles. Done with that? How many types of cell organelles we will study in the 9th standard? 9 types of cell organelles we will study. So let's start the first cell organelle of the cell. So first cell organelle is endoplasmic reticulum. Short form इसका है ER. One more thing, in biology if we study anything, so remember this thing, we will study structure and function. Two things, remember this thing. Two things, structure and function, we will study. So first we start with the structure of endoplasmic reticulum. Are you watching this diagram? In diagram you can see the structure easily. One important line is written over there, is it is found near the nucleus, and it is nucleus. And next to the nucleus you are watching this type of structure which is known as endoplasmic reticulum. Okay, the second line in notes is written flattened sac called cisternae. It means ये जो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये फैट स्ट्रक्चर्स हैं, तो these structures को in science language we will call cisternae. CISTERNAE. It is written over there. उसको हम बोलते हैं cisternae. Then it is the structure. It is present next to the nucleus, near to the nucleus. Second, it is found the flattened sac-like structure. This is known as cisternae. This is the structure. And one more important thing we will have to study, that two types of endoplasmic reticulums are there. One is RER, means rough endoplasmic reticulum. Second is SER, smooth endoplasmic reticulum. So what are they? In the diagram, are you watching one thing? These type of endoplasmic reticulum having dot-like structure. So these dot-like structure makes the surface of endoplasmic reticulum very rough. Okay, so these are the rough endoplasmic reticulum, and you are watching this orange color diagram where the surface is very clean, no dot-like structures are there. So it means they are known as smooth endoplasmic reticulum because उनकी surface smooth है. Understood? More structure, two types of more structure you understood about the two types. One is RER. It means इसमें कुछ attach है, and what thing is attached in it? That is the ribosomes, the non-membrane structure which is present in the endoplasmic reticulum. जो ये portion है उसको हम बोलेंगे rough endoplasmic reticulum, and the surface is smooth here. Here the surface is smooth, so what we call smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, and this is rough endoplasmic reticulum. Done with that. Now come to the functions. Ki structure is completed, now functions. What is the function of endoplasmic reticulum? So remember this thing, the proteins and lipids
Two are the chemical substances and very important component of our body which gives energy and which why we can do many work in our daily life. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? इसमें राइबोसोम्स अटैच हैं. These are the ribosomes which is attached on the surface of endoplasmic reticulum, and ribosomes work is the function of the ribosome is the protein synthesis. Another work is we can call the ribosomes as a protein factory of the cell, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स का होता है. और राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो गए तो उनका वर्क हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क हो जाएगा? प्रोटीन synthesis. And smooth endoplasmic reticulum works synthesize the lipids, which it is written in the notes. Smooth synthesize lipids, rough synthesize proteins. Done. Now come to the next cell organelle. Next cell organelle is mitochondria. It is very important organelle of the cell, because it is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse यहाँ पर की एनर्जी इकट्ठी हो जाती है ना, उसके घर को हम क्यों इसको बोल रहे हैं, वाई? तो इसके बाय द नेम ऑफ इट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड वाई वी आर सेइंग पावर हाउस, क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जी स्टोर होती होगी इसमें, बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी. सो बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनल. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर. डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इन द डायग्राम यू आर वॉचिंग. वन इज आउटर मैम्ब्रेन, अनदर इज इनर मैम्ब्रेन. दिख रहे हैं इजीली आपको 2 मैम्ब्रेन. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. इसमें क्या क्या फिल्ड होता है? ये जिगजैग लाइक जो आपको दिख रहा है ये क्रिस्टे होता है जो एक जिगजैग पोजीशन में दिख रहा है. अब इसके अंदर और इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स. अब जो इसके अंदर आप वन चीज़ देख रहे हैं, दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये है DNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA. इट इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर देयर इन द डायग्राम कि ये जो स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहा है. सेकेंड इज थिंग इट इज़ अ मैट्रिक्स एंड ATP सिंथेसिस इसके अंदर होता है. तो स्ट्रक्चर में आप यही लिखेंगे कि 2 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. जिगजैग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, एंड उसको हम क्रिस्टे, कॉर्नर्स को हम क्रिस्टे बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्लीपर लाइक दिख रहा होगा आपको, स्लीपर लाइक होता है. तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ कम टू द फंक्शन एज आई हैव टोल्ड just now, it is known as powerhouse of the cell. It means जो भी हम खाना खाते हैं, whatever the food we are eating, it gives energy to us, and this energy is stored inside the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर वो ऑर्गेनल है जो एनर्जी को स्टोर कर लेती है. तभी तो जब हम खाना खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद तक हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं कि जब पूरे टाइम खाना खाते रहेंगे तभी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी देर बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. बिकॉज वी आर हैविंग, आवर बॉडी हैविंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, एंड दीज बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल having mitochondria, each cell having 2 or 3 mitochondria, and these number of mitochondria storing what they are storing energy. और एनर्जी जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है? ATP इज अ केमिकल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसके फॉर्म में एनर्जी सेव हो जाती है किसके इनसाइड में? माइटोकॉन्ड्रिया के इसके अंदर सेव हो जाती है, जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर है. और जब भी जो मेटाबॉलिज्म होता है, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, जो भी एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो वी कैन यूज़ दिस स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. So mostly the question asking which organelle is known as powerhouse of the cell, what will you call? Mitochondria. And what is the function of it? Because it stores energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Okay. Now come with the third cell organelle. Third cell organelle is Golgi apparatus, Golgi bodies, or Golgi complex. Okay. Why we are saying this Golgi and bodies भी है, apparatus भी है, complex भी है? The reason behind that, reason ये है, the scientist name was Camillo Golgi. Camillo Golgi was a name of scientist,
and this scientist given his सरनेम के नाम पर उन्होंने इसका नाम रख दिया। उनको इस तरीके का स्ट्रक्चर सेल के अंदर नज़र आया, देन ही हैड गिवन द नेम कि इसको हम गोल्गी बोलेंगे। अब कुछ बॉडीज़ जैसा स्ट्रक्चर था, एपरेटस जैसा स्ट्रक्चर था, कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर लगा, तो उन्होंने उसको नाम रख दिया गोल्गी एपरेटस। तो रिमेंबर दिस थिंग, द साइंटिस्ट नेम हु हैज़ डिस्कवर्ड द सेल ऑर्गेनेल वॉज कैमिलो गोल्गी। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब स्ट्रक्चर तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ बॉडीज़ और कॉम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर है, और ये डिलीवर प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, कंप्लीट हैं, पूरे फुल दिख रहे हैं, कंप्लीट भी हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, इन द डायग्राम आप देख सकते हैं। और कुछ डिलीवर प्रोडक्ट्स हैं। डिलीवर प्रोडक्ट्स समझ रहे हैं आप, यानी कि जो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र चीज़ें होती हैं, खाने का, जो हमारा खाने का ट्रांसफ़र होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। तो इसलिए उसको डिलीवर प्रोडक्ट्स का नाम दिया है। ये इसका स्ट्रक्चर है। और वेसाइकल्स फॉर्म, नेक्स्ट लाइन है, वेसाइकल फॉर्म्ड ऑफ द गोल्गी एपरेटस एंड ट्रांसपोर्ट द पैकेज्ड प्रोडक्ट्स टू द सेल मेम्ब्रेन्स। यानी ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर्स इस तरीके के, इसको हम वेसाइकल्स बोलते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये गोल्गी एपरेटस में क्या काम करते हैं, मतलब फंक्शन जो है गोल्गी एपरेटस का, वो वेसाइकल्स कर रहे हैं। वेसाइकल्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इनका काम क्या होता है, जो भी खाना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, एंड अनदर थिंग कि पैक भी करते हैं, है ना। जब हम कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे पहले हम उसको पैक करते हैं ना, कि ऐसे खुले में नहीं ट्रांसपोर्ट करते। तो फर्स्ट वो खाने को पैक करने का और ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है? गोल्गी एपरेटस। दिस इज द फंक्शन एंड structure of the Golgi apparatus. Now come to the third cell organelle, lysosome. The another name of the lysosome is suicidal bag. Why we are called it suicidal bag? ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, which organelle is known as suicidal bag and why it is known as suicidal bag. ये suicidal bag इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है बस्ट होने की, अपने आप ये बस्ट हो जाता है। कब बस्ट होता है? जब हमारी बॉडी में, जब हम बीमार हैं या फिर हम फास्ट रख रहे हैं या फिर हमने खाना नहीं खाया है, तो उस समय हम लोग एकदम से, तो ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया तो हमारी डेथ हो जाएगी, हम डाई हो गए। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये खुद सुसाइड कर लेगा, ये खुद अपने आप को बस्ट कर लेता है और सेल्स को डाई कर लेता है और हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सुसाइड करता है हमको बचाने के लिए, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। एंजाइम्स नेसेसरी फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। जब सेल अपने आप डाइजेस्ट करता है, ये सेल्स के एंजाइम्स को अपने आप डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है एट द टाइम ऑफ लैकिंग ऑफ फूड इन अवर बॉडी। ओके, एंड अनदर वर्क इज क्लीन्स एंड रिसाइकल्स द आइटम्स। हमारे जो सेल्स होते हैं उनको क्लीन भी करता जाता है, मतलब ये डेथ होती जाती है, जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं उनकी क्लीनिंग भी के लिए भी लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका स्ट्रक्चर आप इसका डायग्राम से देखिए कि इसका स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक लिपिड की लेयर होती है, और ये प्रोटीन, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन को प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और अंदर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टूड? दैट वाज द फोर्थ सेल ऑर्गेनेल। कम टू द राइबोसोम्स। इन प्रीवियस फर्स्ट ऑर्गेनेल टुडे, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों तरफ जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स अटैच रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, उसमें क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है राइबोसोम्स की, कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ये जो आउटर मेम्ब्रेन इसमें दिख रही है, बट ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये स्पेशल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कहलाते हैं। ओके, तो इनके दो अलग अलग नेम हैं, इट इज़ नॉट रिटन ओवर हियर। कि सबसे पहला तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि इसको हम और भी बहुत सारे, इसका जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। इसकी दो चीज़ें हो गई, प्रोटीन फैक्ट्री का और नॉन मेम्ब्रेनस, यू कैन से लाइक दिस। नाउ कम टू द
दे आर स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनल्स कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। इसमें 2 सब यूनिट्स दिख रही हैं, एक होती है स्मॉल, एक होती है लार्ज। 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का फंक्शन है, प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में। अब नाउ कम टू द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ mRNA। तो इसको इन शॉर्ट आई कैन टेल यू, इसमें भी लिखा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको फर्स्ट ऑर्गेनल पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि उसमें अटैच रहता है, प्रोटीन का काम करता है। और इसका दूसरा काम ये होता है कि हमारी बॉडी को तब प्रोटीन्स बहुत चाहिए होती हैं जब सेल डैमेज हो जाती है और रिपेयर होती है, उस टाइम पर ये प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को प्रोटीन्स। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ओके, दैट इज़ द फिफ्थ ऑर्गेनल। नाउ कम टू द सिक्स्थ ऑर्गेनल इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का नाम जब भी आप सुने तो आप याद रखिए कि प्लांट सेल में इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये एक ही प्रेजेंट होता है। बट इन द एनिमल सेल 2 or 3 vacuoles are present, but the size is very small. Okay, so this is the diagram of plant cell. Plant cell, and the vacuole is present in the center of plant cell. One more thing, vacuoles. If we talk about the structure of the vacuole, it is empty structure. बिल्कुल खाली स्ट्रक्चर नज़र आता है ये। It is empty structure, but it is filled with cell sap. सेल सेप और जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, आउटर लेयर इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इट इज फिल्ड विद द सेल सेप एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल एंड having only one, and the plant cell having only one vacuole that I told to you. Now come to the function of it. फंक्शन इसका ये है कि इट स्टोरेज ऑफ द सेल, यानी कि फूड का या गैशियस का जिसका भी स्टोर किया जाता है वो कौन करता है, प्लांट सेल में वैक्यूल। प्लांट सेल में प्रेशर को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर, सर्कुलेशन ऑफ फूड जो जाइलम फ्लोएम करते हैं, तो उसमें जो वाटर और फूड का जो स्टोरेज है प्लांट सेल में वो कौन करता है, वैक्यूल्स। इसलिए वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में और ये एक ही प्रेजेंट होता है, डेट इज़। और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है बट इसका साइज़ छोटा होता है और 2 या 3 या 4 होते हैं, बट इसमें मोस्टली प्लांट सेल में एक होता है या फिर 2 भी होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। नेक्स्ट cell organelle is plastids. It is very important cell organelle and it is present only in plants. Never it is not present in animals. Remember this thing. Plastids क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। 2 मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड्स का और मोस्टली ये प्लांट्स में ही कलर का काम करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। तो इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, है ना। ल्यूकोडर्मा एक डिजीज़ होती है हमारी स्किन में, जब हो जाती है तो कलरलेस हो जाती है हमारी स्किन, वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। ल्यूको मतलब कलरलेस, डर्म मतलब स्किन, दैट आई एम गिविंग एग्जाम्पल। तो उसमें ये होता है, तो यहाँ पर भी ल्यूको मतलब क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जहाँ पर प्लांट का पार्ट कलरलेस होता है। जैसे पोटैटो है, पोटैटो का स्टेम में कोई कलर नहीं होता, तो वो कहाँ, उसमें कौन सा प्लास्ट प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट। कम टू द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब होता है कलर, कलरफुल प्लास्टिड्स होती हैं, ब्लू भी होती हैं, रेड भी होती हैं, येलो भी होती हैं। अब मैंगो है, मैंगो येलो कलर का है। वाटरमेलन अंदर से रेड कलर का है, बाहर से ग्रीन और ब्लैक कलर का है। तो ये सारे कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लास्टिड्स। और विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इट इज, क्रोमोप्लास्ट। नाउ कम टू द थर्ड प्लास्टिड, इट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स ग्रीन। लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है, ग्रास में जो ग्रीन कलर होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यू नो अबाउट इट व्हेन यू हैव स्टडीड इन द 7th स्टैंडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर देते हैं प्लांट्स को, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, नाउ दीज आर द फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में खाना बनाने का काम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, हेल्प्स इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्रोमोप्लास्ट कलर दे रहे हैं, जैसे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में लिली है, रोज़ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सनफ्लावर हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स।
तो कलर्स तो दे ही रहा है, साथ ही साथ जो पॉलिनेशन का जो फंक्शन होता है, पॉलिनेशन इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फॉर द रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी ये हेल्प करता है कलर्स देने में। ल्यूकोप्लास्ट का काम एक ही है, वन एंड ओनली द वर्क इज स्टोरेज, या तो जैसे पोटैटो का एग्जांपल दिया तो मैंने स्टार्च का बताया, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ फैट। ओके, सो दिस ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। Come to the centriole. The special thing in the centriole is that it is only present in animal cell. It is not present in plant cell. It is only present in animal cell. When we talk about the structure of centriole, तो it is a star-like structure. You can see in this diagram कि star-like structure होता है, और उस स्ट्रक्चर में ये साइड में देखिए बॉल्स जैसे पाइपलाइंस लगे होते हैं। These are the pipelines. इन पाइपलाइंस को हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और एक सेंटर जो होता है उसको हम सेंट्रल हब बोलते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होता है मोस्टली सेंट्रल हब। ये क्या करता है, सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स को ज्वाइंट करता है, और जो ज्वाइंट कर रहा है उसको हम स्पोक्स बोल रहे हैं। ओके, सो सेंट्रियोल जैसे ही दिमाग में आएगा आपको ये याद रखना है कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट और नियर टू द न्यूक्लियस in animal cell only, and it is a star-like structure. Center part is central hub, and this join and this longitudinal part is known as spokes, and these three का ये पेयर होता है हमेशा ही माइक्रोट्यूब्यूल्स का, 3 के पेयर में ही ये रहते हैं और ये जॉइंट रहते हैं, इनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दैट इज द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो फंक्शन इसका क्या है, जब माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन यानी हमारी बॉडी में सेल पूरे टाइम डिवाइड होते रहते हैं। ओके, सो जो डिवाइड हो रहे हैं बराबर सेल्स, डेली डेथ होती है, नए और नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स डेथ होती जाती है, नए सेल्स ग्रो करते हैं। तो सेल डिवाइड होता है तभी वो नए सेल्स ग्रो करते हैं। तो जब एनिमल में यानी ह्यूमन बीइंग्स में, हम सब में जब सेल्स डिवाइड होते हैं, तो अब ये सेंट्रियोल सेल्स डिवाइड करने में क्रोमोसोम्स को, जो क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू, उसको डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल एंड द लास्ट सेल ऑर्गेनेल इज सेल वॉल। इट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। जब आपने प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस डायग्राम से लर्न किया था इन प्रीवियस वीडियो, तब आपने देखा होगा कि एनिमल सेल के ऊपर कोई वॉल नहीं थी, बट प्लांट सेल जो रेक्टेंगुलर शेप का था, ग्रीन कलर का था, उसमें आउटर कवरिंग एक एक्स्ट्रा दिख रही थी, वो कहलाती है सेल वॉल। ये पॉलीसेचराइड्स की बनी रहती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट है, साथ ही साथ फंजाई बैक्टीरिया में और एल्गी यानी काई, उसमें ही प्रेजेंट होता है, और हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये जो सेल्यूलोज से बनी रहती है, जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी रहती है, एंड मोस्टली इन MCQs एंड OT टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, तो यू विल राइट सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज